Solutions and colligative properties. Next part, important four problems. Hello, myself Arun Bhange. This is our next session. NEET problems, because the exam which is somewhat nearer, these four important problems, very important problems. यासारखेच प्रॉब्लेम परीक्षेला असतात, परीक्षेतूनच हे प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत. थोडंसं विचार करायला शिकवणे हे माझं काम आहे. या माध्यमातून मी तुमच्या समोर पुन्हा येत आहे. पहिला प्रॉब्लेम, द फर्स्ट प्रॉब्लेम इज molarity of NO3 minus in the solution after mixing 2 liter of 3 mol AgNO3 and 3 liter of 1 mol BaCl2 is NO3 minus, it is one of the ion of AgNO3. It is mixed with this BaCl2. At first you must conclude that 2 liter of 3 molar AgNO3. Yes, solution is here now. I am giving you some time to write the problem. Here start the first problem. 2 liter of 3 molar AgNO3. It means 2 liter of 3 molar AgNO3, which is equivalent to 6 moles of AgNO3. 1 लिटर मध्ये जर 3 मोल असतील तर 2 लिटर मध्ये 6 मोल असतील. निश्चितच त्यांनी दिले त्याप्रमाणे they are given 2 liter of 3 mol AgNO3. 2 liter of 3 mol AgNO3 means what? 2 liter of 3 mol AgNO3 means 6 mol of AgNO3. Final amount is 6 mol of AgNO3 and 3 liter of 1 molar BaCl2. 3 liter of 1 molar BaCl2. It means it is equivalent to 3 moles of BaCl2. विचार करायचा शांतपणे. 6 mol of AgNO3 आणि 3 moles of BaCl2 mixing with each other. 6 moles of AgNO3 stoichiometric concept के हिसाब से 3 moles of BaCl2 reacts with each other. Finally 6 Ag and 6 Cl, 6 AgCl plus 3 BaNO3 twice, BaCl2, BaNO3 twice, BaNO3 twice means 3 BaNO3 twice. It is the balanced equation. After ionization, molarity of NO3 minus काढायला सांगितलेला आहे. घाबरायचं काही कारण नाही. सगळ्याचं डिसोसिएशन आपण लिहू शकतो. डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर 6 Ag प्लस लिहू शकतो, 6 NO3 मायनस लिहू शकतो. ओके, प्लस 3 Ba प्लस प्लस लिहू शकतो आणि 6 Cl मायनस लिहू शकतो. 6 Ag प्लस लिहू शकतो प्लस 6 Cl मायनस लिहू शकतो प्लस 3 Ba प्लस प्लस लिहू शकतो प्लस 6 NO3 मायनस. NO3 मायनसचा अमाऊंट आहे
6 moles. 6 moles of NO3 minus 6 मोल NO3 आपल्याकडे आहे. 6 mole of NO3 is given to you, and you know that when you are determining molarity concept related with volume, amount of volume, how much volume is there? This 3 liter, this 2 liter means 5 liter, 6 mole per 5 liter. 6 mole per 5 liter. 6 by 5. 6 by 5 means what? 6 by 5 means 1.2 mole. 1.2 mole is our answer. एग्जाम्पल आपके सामने जब होता है ना, एग्जाम्पल का डायरेक्शन किधर जा रहा है, which direction example goes is important. Molarity of NO3 minus concentration, molarity mole per liter, means this is 2 liter of 3 mole AgNO3. 1 liter of 3 mole AgNO3 consists of 3 mole Ag. But 2 liter means 6 mole AgNO3 and 3 mole BaCl2 mixed with each other, which gives it is the balanced reaction. When balanced reaction is there, you must do this 6 Ag plus 6 NO3 minus. सोल्यूशन में सबका आयोनाइजेशन होगा ना, आयोनाइजेशन के साथ ही चलेंगे ना. 6 Ag plus 6 NO3 minus 3 Ba plus plus 6 Cl minus. Amount of NO3 minus is 6 moles. 6 moles of NO3 minus which is 24. These 6 moles of NO3 minus in total volume 5 liter. 6 mole 5 liter. 1.2 mole is our answer. 6 by 5 का मतलब 1.2 mole. यह है अपना फर्स्ट प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम लिख लेना है. 1 मिनट आपके लिए. ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन. अंडरस्टैंडिंग लेवल पे it is very important part in the solution. Now solution part is going on. New problems are there. New numericals are going on. Theoretically आप पढ़ के लिख सकते हो. Theoretically it is possible to read. Theoretically it is possible to judge the answer. Judgment of answer theoretically is somewhat possible because you are reading very carefully, you are reading very fastly. But here the example, accurate example, what is the concept, which is given, which is calculated, which is given, which is calculated. Yes, my first problem is over. जो कोई मेरे स्टूडेंट्स अभी 12th के लिए नीट देने जा रहे हैं, उनके लिए आप घर बैठे बाकी सर को देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो. कुछ बोलना है, कुछ आपको 9423444943 इट इज माय फोन नंबर. कुछ कांटेक्ट करना हो, कुछ 11th स्टूडेंट के लिए कांटेक्ट करना हो, मैं परवड़ी में आता हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हो. ये मेरा फोन नंबर इसके पहले भी मैंने दिया था. अब ये फोन नंबर के बाद मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज P1, somewhat theoretical. सब आप न्यूमेरिकल ले रहे हो सर, somewhat theoretical part. Sir, theoretical part is also important. P1, P2, P3 are vapor pressure of water, KNO3 and ether. Ether is volatile. Ether is volatile. It means in fraction of second it gives vapors. Fraction of second में vapors मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी. कोई भी हो मेरे सामने, बस मेरे vapors ज्यादा.
मेरे वेपर ज्यादा, मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा। ये जो है ना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर KNO3 ether, ether is a pure solvent, ether is a pure solvent having more vapor pressure, ये P3 is greater, no doubt P3 is greater. Ether is volatile, petrol is volatile, alcohol is volatile. The volatility of water is somewhat lower than that of these solvents. नेक्स्ट वोलेटिलिटी में नंबर लगेगा वाटर। वाटर में KNO3 सॉल्यूशन, ये जो है ना KNO3 सॉल्यूशन, ये तो आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करने। इट गेट्स व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर गेट लोअर। तो सेकेंड, ये फर्स्ट आया, इसके बाद ये P3 P1, ये P2। ये तो आपको ऑर्डर लिखना है, व्हाट इज वेपर प्रेशर। हमखास परीक्षेला अशा प्रकारचा एक ऑर्डर, मग ते अल्फा फॅक्टरच्या बाबतीत असू द्या, वॉन्टा फॅक्टरच्या बाबतीत असू द्या, ऑस्मोटिक प्रेशरच्या बाबतीत असू द्या, रिएक्टिव्हिटीच्या बाबतीत असू द्या, ऑर्डर हमखास येतं। इफ 2 points get matched, डरने का नहीं। 2 points get matched, डरने का नहीं। ये तो यहाँ पे किसी भी तरह नहीं होगा, ये आंसर होगा। इसीलिए एक्सप्लेनेशन थियोरेटिकल हो गया। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जो भी फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। एवरेज 50-60 स्टूडेंट्स है, बढ़ेंगे वो, क्योंकि उनके लिए एग्जाम्पल्स, जब नीट एग्जाम हो जाएगी ना, ऐसे प्रॉब्लम नीट में देखोगे ना, और वो वीडियो था मांगे सर का, उसमें ये प्रॉब्लम था, बाद में पछताने के बजाय अभी सॉल्व करो। देखो P1 P2 P3 are vapor pressures of water, KNO3 and ether. This is the order. Okay, yes, it is my second question today, 25th May. It is my birthday also. उसकी खुशी में मैं आपके सामने हूँ। दोपहर के 12 बजे है, अच्छी धूप है, उसमें बांगे सर आपके सामने पढ़ा रहे हैं। want of factor, it is also one of the want of factor, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट want of factor का ये प्रॉब्लम ना आपको कभी भी यूज में आएगा, कभी भी 100% आप इसको यूज करोगे। ये कहीं तो भी आपके सामने, आपके नजरों के सामने आएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, इट इज एसोसिएटेड, दोनों एक बन जाएंगे। डायमर, दोनों एक साथ होंगे, इट इज द डायमर। डायमर विच इज टू बी फॉर्म, उसका डायमर का want of फैक्टर बताना है। ये जो एसिटिक एसिड है ना, 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड, आपको 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड अलग अलग है, ये अलग अलग है बेटे। CH3COOH, CH3COOH, when it is to be associated, CH3COOH twice, ये है 2 moles of CH3COOH gives CH3COOH twice। तो इसका अल्फा फैक्टर देखना है, अल्फा फैक्टर आपको इसको देखना है। तो इसके अल्फा फैक्टर के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अल्फा फैक्टर कैसे आएगा CH3COOH का। ये एसोसिएशन का प्रॉब्लम है, आपके सामने एसोसिएशन आएगा। अभी देखो, इनिशियल, बिफोर start to study the process, initial or before association, before association, take 1 mole of this, 0 mole of this, before association,
After association, some type of fraction association, alpha fraction get associated. Alpha fraction get associated. If 2 moles associated gives 1 mole. 2 moles of acetic acid associated with 1 mole, then you are associating only fractional part. पूरा का पूरा नहीं, पूरा का पूरा नहीं. तो ये होगा x अल्फा बाई 2, यहाँ पर होगा अल्फा बाई 2. ये भी है, ये भी है, और माइनस अल्फा भी है, अल्फा बाई 2 भी है. This 1 minus alpha and alpha by 2 both are, means the I factor, it means that the moles, total moles after association ये practically observed है, and moles before association बाद में क्या हुआ, पहले क्या था. टोटल बाद में कितने लोग रह गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये अल्फा निकाल रहे हैं हम. मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितना लिया था हमने, 1 लिया था. ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2 मीन्स अल्फा बाई 2 में से अल्फा चले गया, या अल्फा में से अल्फा बाई 2 चले गया, ये बड़ा है. 1 माइनस अल्फा बाई 2, इट इज द आंसर. 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2. ओके, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, इसका मतलब होता है ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस हाफ, क्या होगा, -1 बड़ा है तो -हाफ होगा. 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज द आंसर. ये आंसर 1 माइनस अल्फा बाई 2 है बेटा. देखो अभी 1 मोल ऑफ दिस, 0 मोल्स ऑफ डायमर. अल्फा फ्रैक्शन गेट डिसोसिएटेड. 2 के लिए 1 है, तो अल्फा के लिए कितना, 2 के लिए आधा हो सकता है, तो अल्फा के लिए अल्फा के आधा हो जाएगा. 2 के लिए हाफ, तो अल्फा के लिए अल्फा बाई 2. 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1. 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 का मतलब 1 माइनस अल्फा बाई 2. इट इज आई फैक्टर, इट इज want ऑफ आई फैक्टर. ये सॉरी, ये अल्फा नहीं, ये आई फैक्टर है. आई फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 फॉर एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. इट इज द एग्जाम्पल. यहाँ पे प्लस गलती से लिखा गया था, तो ये एसोसिएशन होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2. तो आपको आराम से आप लिख सकते हो अल्फा बाय 2. इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको जनरल डिस्कशन बताऊंगा, क्योंकि आई फैक्टर के बारे में, एसोसिएशन के बारे में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं. ये जो है ना, n मोल्स ऑफ ए आपके पास है, तो चिपक के हो गया ए मोल्स ऑफ n, ये n सॉरी n ए an हो गया, an हो गया. बिफोर एसोसिएशन it is 1 mole 0. After association it is 1 minus alpha. n के लिए 1, अल्फा के लिए कितना, अल्फा अपॉन n, अल्फा अपॉन n. Then I factor is equal to this 1 minus alpha plus alpha upon n upon 1. I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n. अल्फा बाई n माइनस u. अल्फा आपने कॉमन अगर निकाला तो आपको लगेगा ये यहाँ से इसका 1 प्लस
अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा, ये ऐसा आएगा। आई फैक्टर आप निकालोगे तो अपने आप ही आपके सामने आंसर आएगा। ये इससे नॉर्मल मोलार मास आएगा, नॉर्मल मोलार मास, इससे नॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलार मास, ऐसा भी बोल सकते हो आप। नॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलार मास आई फैक्टर के लिए, या फिर आई फैक्टर के लिए आपको ये भी फार्मूला यूज में आएगा। ये आई फैक्टर के लिए मैं बताऊंगा लास्ट में। टोटल मोल्स आफ्टर association or dissociation divided by moles initially taken, बस दोनों का रेशियो आई फैक्टर होता है। टोटल मोल्स एसोसिएशन डिसोसिएशन से, इससे आप ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हो। कितना है एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये आदर्श नहीं, ये थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितना लिया उतना मॉलिक्यूल का, अरे भाई वो डिसोसिएट हो रहा है ना, एसोसिएट हो रहा है, उसके पार्टिकल बढ़ रहे हैं। देखो देखो पार्टिकल बढ़ रहे हैं, देखो देखो पार्टिकल बढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। डिसोसिएशन के बाद एसोसिएशन कम हो गया। 50 लोगों की आसन व्यवस्था है, सब लोग आइए, आ गए सब लोग 50 के 50, उसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ आ गए, सब एसोसिएट विद देयर मदर। सब एसोसिएट विद देयर मदर के बाद 25 जगह पे बैठ जाएंगे, 2 का 1 हो गया, कम हो गया ना, कम हो गई, प्रॉपर्टी कम हो जाएगी एसोसिएशन से। डिसोसिएशन हमने समझा था 50 आएंगे, उन्होंने लाया साथ में 20-20 साल के उनके बेटे, तो वो तो 100 हो गए, और 100 हो गए, लोग बढ़ गए, खाना बढ़ गया, जगह बढ़ गई, प्रॉपर्टी बढ़ गई। ये है एसोसिएशन डिसोसिएशन। ओके बेटा, टुडे 25 में अरुण भांगे दोपहर के 12 के बाद अति धूप में ये चल रहा है आपके लिए, नीट के लिए। वांट ऑफ फैक्टर अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपने आप ही कुछ लास्ट के एग्जाम तक जब जाओगे पढ़ोगे तो अपने आप आएगा। और एक बार मैं वांट ऑफ फैक्टर का ये क्वेश्चन आपके सामने लिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY is related to want of factor I by the expression। oh yes, ये भी वही है। AXBY डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ask the question, alpha is associated with weak electrolyte, weak electrolyte not completely dissociated, alpha is equal to 1 strong electrolyte number of ions is equal to I factor, NaCl AlCl3 AlCl3, because they are strong, they are completely dissociated। एक के लिए नहीं सोचेंगे आप, एक AlCl3 के बारे में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं निकाल सकते भैया। Al प्लस 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 Cl माइनस प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, ये लोग बढ़ाएंगे एक कचार एक कचार एक कचार एक कचार एक कचार, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रेशियो, हाई फैक्टर, वही आएगा ना। 4, ये कितना 1 2 3 4 से होना ना ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 पट आएगी ना, और ये थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैंसिल, ये 4 आपका आएगा ना।
कितने पट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है अगर इलेक्ट्रोलाइट लिया तो आई फैक्टर वही होता है। चलो बेटे ये AXBY है, उसका इक्विलिब्रियम लिखना है। चलो लिखेंगे इक्विलिब्रियम, डरने की क्या बात है, आप मेरे साथ हैं। XA प्लस Y, X मोल सब ये Y प्लस YB X माइनस YB माइनस माइनस XA प्लस YB X माइनस, एक बार सोचेंगे ये XBY है ना, AXBY, तो AXBY तो हमने लिखा करेक्टली AXBY रिलेटेड विथ XABY, XA प्लस BY, ये Y प्लस चार्ज, ये Y माइनस चार्ज। अभी आपको ये 1 मोल ही है, X मोल, ये 1 मोल ही है। डायरेक्टली आप XA एंड BY ऐसा भी लिख सकते हो, YB XA प्लस YB आप लिख सकते हो डायरेक्टली। आंसर के हिसाब से देखा जाए तो इनिशियल मोल, ओके, इनिशियल मोल 1 मोल 0 0 अल्फा मोल एट इक्विलिब्रियम आफ्टर डिसोसिएशन, it is 1 minus alpha x alpha y alpha। I is equal to, फॉर्मूला क्या है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1। ये जो है ना, यहाँ पे हमने ये तो मैं 1 माइनस अल्फा कॉमन निकालूंगा, 1 माइनस ये अल्फा कॉमन निकला, फिर ऐसे लिखूंगा थोड़ा इन शॉर्ट, ये इधर लिखूंगा 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई माइनस अल्फा, एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1, आई माइनस 1। चलो ये 1 इधर चले जाएगा बेटे, यहाँ है -1 होगा, यहाँ है -1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई -1 होगा, ओके, आई -1 अपॉन एक्स प्लस वाई -1, इट इज द आंसर। किसी भी प्रॉब्लम में थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थक जाओ, एनर्जाइज हो जाओ, उसको पढ़ो, बार बार पढ़ना है, उससे फाइट करना है, अपने आप आने आएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल सामने आया ना तो मैं उसमें कूद जाता हूँ, धीरे के अपने आप रास्ता मिल जाता है। ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते हैं नीट के।